Yoga is more than 5,000 years old ancient Indian science and a way of life. It connects body, mind, and soul. It unites thoughts and actions, brings harmony between man and nature. It is a holistic approach to health and well-being. My dear brothers and sisters, our Honorable Prime Minister in his brilliant speech told that yoga is no mysticism, not mere physical exercises. It's a science of holistic living to raise man from his normal level to become great, super divine human beings. And it consists of the asanas, the pranayama, mudras, bandhas and kriyas, and it is to gain mastery over the mind, he said. And it is this holistic vision of yoga that we have to carry for people at large in the whole world. He promoted the entire dimension of yoga. The word yoga comes from the root yuj, yujyate anena iti yogaha. It is to expand Jivatma to Paramatma, individual soul to all-pervasive reality. The great sage Patanjali defined yoga as to gain mastery over the mind. This consists of two dimensions. One, to speed up the mind, faster mind, quicker mind, brilliant mind, innovative mind on one side, and to calm down the mind, silence the mind, tranquil the mind. These are the two wings of gaining mastery over the mind. Swami Vivekananda in the recent past popularized yoga for the well-being of the society. He says we have to pursue the path of yoga either by work or by worship, either by philosophy or by psychic control. By saying so, he is highlighting chiefly four streams of yoga. They are Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, and Karma Yoga. I am happy to say that today there is enough research evidence through randomized control trials for the beneficial effects of integrated approach of yoga therapy in many non-communicable diseases. The objective of yoga is to build the total personality development. And S. Vyasa is developing these 16 modules for Swayam MOOC, supported by AICT. June 21st, International Day of Yoga. Let us all join hands to see that we practice this protocol immensely all over the country and all over the world. My dear brothers and sisters, please adopt this protocol, which consists of all the four streams of yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, and adopt that as a way of life every day with the practice of this asanas, pranayama, meditation, and every dimension of yoga. I wish you all the best for health, harmony, and peace, and to bring India to the greatest heights of its achievement. प्रोफेसर BS झा जो योग के बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत प्रैक्टिस किया है इन्होंने योग का। प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग के थे, यहाँ रिटायर हुए कुछ दिन हुआ है। इनफैक्ट 2011 में रिटायर हुए थे। तो ऐसे अवसर पर उनको यहाँ बुलाकर हम लोगों को थोड़ा योग के बारे में जानकारी लेना आवश्यक था, और इसलिए मैंने समझा कि इन्हें यहाँ आमंत्रित किया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर झा। हमारे समक्ष प्रशाल में प्रोफेसर वेद प्रकाश जी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे यहाँ, ये भी रिटायर किए कुछ दिन पहले। बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे समक्ष प्रोफेसर MK शर्मा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ प्रोफेसर थे। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। उपस्थित सारे शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और कर्मचारीगण,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो कुछ बताएं और तत्पश्चात बाकी सारे सज्जनों से मैं आग्रह करूंगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आज हम सभी जो इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए सबको बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे बीच आज हमारे ही कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जिससे हम अभी बहुत दिनों से नहीं मिल पाए, आज योग दिवस के अवसर पर उनसे मिलने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी और अच्छी बात है। डेफिनेटली आज हम उनसे कुछ ना कुछ और सीखेंगे। जैसे इन्होंने बताया प्रोफेसर रंजन मिश्रा ने कि प्रोफेसर BS झा, जब मैं कॉलेज को ज्वाइन की थी उसी समय वो रिटायर कर रहे थे और उनका नोटिस हो रहा था 2011 में। तो अभी तक वो स्वस्थ और एक्टिव है, ये सिर्फ केवल योगा के कारण है, क्योंकि वो आज भी सैंडिस कंपाउंड में प्रोफेसर वेद प्रकाश, प्रोफेसर BS झा, प्रोफेसर MK शर्मा, इन तीनों की जोड़ी आप जब मॉर्निंग में जाइए तो डेफिनेटली मिलेगी आपको। वो हमेशा वहाँ घूमते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं और अपने आप को स्वस्थ एंड हेल्दी, स्वस्थ कहने का मतलब केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अच्छी तरीके से रिटायरमेंट के बाद भी अपने समय को व्यतीत कर पाते हैं। और जब भी उनको मौका मिलता है तो वो अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स हो, हम सभी जैसे शिक्षकगण हो, उनके साथ वो शेयर करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये बता रहे हैं तो लाइफ भी एक साइकिल है। आप जन्म लेते हैं, फिर एडोलसेंट में जाते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर ओल्ड एज भी आता है, फिर वो ख़त्म भी होता है। तो इसलिए जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं GOT, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए कुछ, एकदम पैसिव मत रहिए, तब नहीं बोलेंगे। GOD मतलब होता है जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ये तीन चीज़ हो रहा है ना, कोई चीज़ जनरेट होता है, कुछ चीज़ कुछ देर के लिए प्रिजर्व होता है, फिर ये कंटिन्यूअस है ना, ये प्रोसेस, इसको समझना चाहिए। तो ये इसी को हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते थे। तो थोड़ा सा आप पहले फिजिकलिटी, तो 2-4-5 आसन सुबह में आप करिए। जैसे एक ताड़ासन है, एक तिर्यक ताड़ासन, एक कटी चक्र, एक संयोग से आता है। आप अपने लाइफ में इसको जरूर दीजिए स्थान, नहीं तो आप काम नहीं कर सकिएगा। हैव फेथ, ओवर स्ट्रेस हो जाइएगा। आज के युग का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? स्ट्रेस और एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स जो हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, ये आपको अस्थिर नहीं है। अभी तो यंग है आप थोड़ा सा, इसके बाद आप जैसे ही आप 30 क्रॉस करिएगा बहुत प्रॉब्लम होगा। US में आज देख लीजिए 70% आदमी सेक्टरिस्ट के पास जाता है और 30% आदमी दवा खाता है। एक भी व्यक्ति वहाँ स्वस्थ नहीं है, जबकि उसको हर तरह का फिजिकल है ना, धरती का स्वर्ग है वो। तो योग को आप समझिए कि आप बेसी लंबा चौड़ा में मत जाइए। पतंजलि का है तो फिर गीता में समत्वम योग युस्ते, पतंजलि बोलता है जो चित्तवृत्ति निरोध है। ये सब बड़ा बड़ा बात में आप मत जाइए। आसन से शुरू करिए, 15 मिनट आसन, 10 मिनट प्राणायाम और 10 मिनट शवासन, ये आप करिए। और रात में सोने से पहले तो खाना थोड़ा अर्ली खाइए, 9 के पहले तक। आप यंग आदमी हैं तो आप लोगों को सोने से 1-1.5 घंटा पहले खाना चाहिए और गैजेट्स को 1-1.5 घंटा पहले बंद कर दीजिए। मोबाइल वगैरह देखते न मत सोइए। और 10 मिनट आप लाइट ऑफ करके बैठ जाइए। और सुबह से शाम तक जो आप देखे हैं, जैसे आप हमको देखते हैं ना, वही देख रहे हैं ना, लाइव का बाहर में एक्टिविटी हो रहा है, जैसे वस्तु परिस्थिति ये सब जो है ये कांस्टेंट नहीं है।
कितना भी आप मैनेज करिए, कभी मैनेज संस्कृति इति संसार हमेशा बदल रहा है। ये हम लोग जो हैं, बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, शरीर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो थोड़ा शरीर और मन को समझना है। शरीर तो कुछ बोल नहीं सकता है शरीर का, लेकिन अगर हम एनालिसिस कर दें तो उसका 75% ठीक रख सकते हैं आप। लेकिन मन जो थॉट और इमोशन है वो तो सिर्फ एक भ्रांति है। कोई चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, कहता है कि किसी विचार को अगर बहुत महत्व दीजिए तो इट कैन स्टार्ट ए वार, है ना। अगर कोई आपको गाली दे दिया, कुछ कर दिया, कुछ, तो आप कोई नेगेटिव थॉट जो होता है वो निकल भी नहीं करेगा दिमाग से आपके, है ना। तो आप जा रहे थे पटना, अगर कहीं स्टेशन पर थोड़ा सीट के लिए हो जाए तो हो सकता है आपकी पूरी यात्रा गड़बड़ हो जाए। इसलिए सम्यक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ चाहिए, है ना। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। आप शरीर है ना, भगवान की बात वो सब मत करिए। पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं ना, कैनेटिक एनर्जी समझते हैं ना, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होना होता है, तरह तरह का एनर्जी है, वो हेट्रोजीनियस है। थॉट का जो एनर्जी है, इमोशन सब एनर्जी है। बॉडी इज कंप्रेस्ड एनर्जी, है ना। तो ये होमोजीनियस जब तक नहीं हो तब तक आदमी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता है ना। तो आप 1 घंटा रात में बैठिए और उसके बाद थोड़ा सा दिन भर जो देखे हैं, किए हैं काम, जो जो हुआ है उसको अपना वो याद करिए, या अपना जिसमें आप मेंटली गड़बड़ हुआ है, फिजिकली विटनेस हो जाइए। जैसे हम मेरे विचार और इमोशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, उसी तरह आपको अपने बॉडी के विचार के इमोशन से 10 मिनट के लिए हटना चाहिए। अवेयरनेस इसको बोलते हैं, लिखा है ना, अवेयरनेस ऑफ योगा लिखा है ना, अवेयरनेस ऑफ योगा। अवेयरनेस एक हम लोग बोलते हैं दृश्य, एक बोलते हैं दृष्टा, है ना। साक्षी और अवेयरनेस। अवेयरनेस को फैलना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई चीज़ को सीमित कर दिया। आप मान लीजिए आपको कोई अच्छा न्यूज आता है, कितना खुश फील करते हैं। कोई मित्र आ गया, अच्छा लगता है ना, है। कोई अच्छा न्यूज़ आ गया, मन फैलता है। कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो सिकुड़ जाता है। ये ऋषियों ने बताया कि आपके अंदर जो ये होते रहता है दिन भर, आप इसको कुछ देखते ही नहीं। जन्मों से आप एगो बचपन हुआ, एगो स्टूडेंट बन गए, फिर इतना नौकरी करना है, फिर बच्चे हुए, फिर एक साइक्लिक है ना। इसमें लोग फंसा हुआ है। तो ह्यूमन ही एक, और तो प्राणी है जिसे बोलते हैं 84 लाख योनि, और जो बोलते हैं वो है कि आपका चेतना का विकास। आदमी ही एक प्राणी है जो कितना ही बदमाश हो वो अपना डायरेक्शन बदल सकता है, बाकी सब रोबोट है। कुत्ता जो है 1000 वर्ष के बाद कुत्ता ही रहता है। हाँ, वो कष्ट होकर इंसान के कनेक्शन में आके फिर उसका अवेयरनेस आता है, जो उसमें लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप में ये आदत शक्ति है कि ये मत जाइए कि अब हम तो कुछ कर ड्रग्स ले रहे थे, ड्रिंक्स कर रहे थे, या जो भी कर, ये मनोरंजन नहीं है। जो क्या बोलता है, मनोभंजन। मन ही दुख का कारण है। कहता है आज तो आपको है कि नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलेगी। जो नौकरी मिल रहा है उनका चेहरा देखिए तो फिर वही है ना, 12 बजते रहते हैं। कोई स्वस्थ है उसको भी देख लीजिए, फिजिकली अगर है। कोई कुरूप है उसको भी देख लीजिए, कोई सुंदर है उसको भी देख लीजिए। आप देख लीजिए दिलों का, कहता है कि काहे दुनिया में खोजता है, हर एक चेहरा यहाँ खुली किताब है। ऐसे क्या हो गया यार, 1 मिनट में इरिटेट हो गए, 1 मिनट में। तो एनर्जी तो आपका गड़बड़ हुआ ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हुआ। तो आप 24 घंटा का रूटीन बनाइए। अब स्टूडेंट लाइफ है, तब एजुकेशन में, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ में तो कम से कम जब भी हो तो आप पढ़ रहे हैं 2 मिनट के बाद एक ताड़ा आपको कोई आसन किया हुआ इसमें आदमी नहीं। देखिए कितने एक होता है कैट, वो होता है एक होता है शरीर को आप जैसे हम लोग खींच देते हैं तो उसमें क्या होता है, कैटलिक एक्शंस बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। तो आप 2 बार ताड़ासन बोलते हैं उसको, अगर आप 2 बार कर लें, है ना, थोड़ा वॉक कर लें
जब भी स्ट्रेस हो थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए और डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, है ना। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, ये एनर्जी जिसको जो है ये बैक में जो हम लोग बोलते हैं इसको, ये किसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें जैसे डॉक्टर्स बोलता है प्लेक्सिस, हम लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं शक्ति का केंद्र जिसको बोलिए, तो उसमें 7 ठो चक्रास बोलते हैं, हम लोग चक्र बोलते हैं। तो उस जगह एनर्जी स्टोर है आपका, है ना। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड्स ठीक रहेगा आपका, और अगर स्पाइनल कॉर्ड्स आपका ठीक नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर लो, कितना भी खाओ, कुछ भी करो, आप फिर बैलेंस में नहीं रहोगे। स्थिर होना, हर चीज़ हम लोग किस लिए करते हैं, खुश होने के लिए ना। तो वेस्ट में है कि खूब खाओ, खूब पियो, एक ही जन्म है, खूब लाइफ करो। ईस्ट नहीं बोलता ऐसा। ईस्ट में ज़िंदगी के बारे में बहुत गहरी थिंकिंग हुई है ना। वो बोलता है कि आपको लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप परफेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए बोलता है कि चेतना का, भारतीय बोलता है कि 4 स्तर होता है। एक तो अभी जगह है, तो तरह तरह का विचार आ रहा है दिमाग में, अभी बैठे भी हैं तो बैठना मुश्किल है आपको, तो आपको बता देते पहला काम क्या करना चाहिए। जब भी हो पूरा डीप ब्रीदिंग लीजिए तो थोड़ा सा रोकिए, फिर मुंह से थोड़ा धीरे से छोड़िए, फिर डीप ब्रीदिंग लीजिए, रोकिए, फिर मुंह से छोड़ते हुए नीचे आइए, नाभि से यहाँ तक जाइए, फिर करिए डीप ब्रीदिंग, स्पाइनल कॉर्ड्स को स्ट्रेट करके करिए। ठीक है, हम 2 मिनट आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या, नहीं तो फिर भाषण देते रहेगा तो ढेरी नेट में निकालते रहिएगा, है ना। तो आप फिजिकल क्या बोले, जब भी बैठिए गजट तो 2-4 बार आसन कर लीजिए, नहीं तो वॉक कर लीजिए, ताकि 1 घंटा के बाद ज़्यादा मत बैठिए। कभी भी पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटा से ज़्यादा वॉक करिए 5-7 मिनट तक। उसके बाद थोड़ा सा एक बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, इधर से लेते हैं, इधर से छोड़ते हैं, है ना। और उसका 5 रामदेव जी उसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, इसलिए उसका 5 स्टेज हम लोग बोलते हैं नाड़ी शोधन। ये 72,000 नस नाड़ी है इसमें, है ना। उसमें अगर आपका एयर बढ़िया से जाए, ब्लड सर्कुलेशन जाए, तो तुरंत आपको अच्छा लगने लगेगा। अभी आपको हम कराते हैं, देखिए आप 2 मिनट, कितना देर खाना खाए हुए आप लोगों को हुआ है? 1.5-2 घंटा हो गया है, हैं? अच्छा ठीक है, इसको हाथ को ऊपर उठाइए, तो सांस लीजिए और उसको सांस, उसके बाद मुट्ठी बांध के सांस ऐसे करके छोड़िए, हाँ नीचे आइए, फिर रुकिए थोड़ा, तो फिर ले जाइए, कट, फिर ले जाइए, पूरा करके छोड़िए, थोड़ा सा जोर से छोड़िए। स्टॉप 3-4 बार करेंगे, लड़का लोग 7-8 बार करें। करिएगा तब होगा। करो, कहता है कृपा करो, करोगे तो पाओगे। कृपा में 2 शब्द है, करो और पाओ, बस। आप लोग ज़्यादा नहीं, बस हो गया। फिर आप देख लें आँख, जब ये स्ट्रेट रहिए, इसके स्पाइनल कॉर्ड्स को जैसे स्ट्रेट रखे, ऐसे बैठे, सब सो गया सेंटर, ऐसे जैसे बैठिएगा आपका सब सेंटर से लाइव हो जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको कर लीजिए। हाँ, नाड़ी शोधन आता है किसी को करना प्राणायाम? अच्छा, एक सीधे बाएं नाक से लीजिए और दाएं नाक से 2-3, जैसे 7 गिनती के साथ करिए, फिर 7 गिनती से छोड़िए, फिर 7 गिनती से लीजिए, 7 गिनती तक छोड़िए, 4-5 बार करिए तो सर। बनाए साउंड है ना, लाइट एंड साउंड, कैसे बनाइए? लाइट एंड साउंड, वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन लेस स्टेट है। तो जितना चीज़ अभी सब वाइब्रेट कर रहा है और होमोजीनियस नहीं है सब आपका। तो एक वाइब्रेशन लेस स्टेट, जैसे आप सोने चले जाते हैं ना, गहरी नींद, एक होता है कि आप सपना देखते रहता है, एक गहरी नींद में जाते हैं। एक 4th स्टेज होता है कि आप जगे हुए हैं और थॉट बॉडी मोशन को स्थिर कर दीजिए, आपको इतना रिलैक्सेशन लगेगा कि
फिर कहने की, इट इज़ एक्सपीरियंसल। इसको योग को आप लोग इसको बुद्धि का मत बना लीजिएगा। हर चीज़ तो आप लोग थॉट में चले जाते हैं ना। एक्सपीरियंसल अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना। तो आप 2 मिनट हम अब थोड़ा सा करा देते हैं, उसके बाद आप लोग वो जो कराता है सब दीजिए समय, लाइफ को इम्पोर्टेंट समझिए। नहीं अगर योग करिएगा तो नौकरी नहीं कर सकिएगा, लाइफ नहीं जी सकिएगा, बता देता हूँ। जब जिम जाइएगा एक पार्ट मजबूत हो जाएगा, एक पार्ट अल्टरनेट नहीं है इसका, लेकिन लोग नहीं समझते थे, लोग चुप रहता है। जिम इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर 2-4 दिन छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत, इट हैज़ गॉट नो साइड इफ़ेक्ट्स, है ना। तो आप थोड़ा सा फिर गहरी सांस लीजिए, तो रुकिए, थोड़ा कंठ पर जोर दे के अब मुँह से फिर गहरी सांस लीजिए। मुँह से छोड़िए, फिर गहरी सांस लीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए। जिसको जो क्षमता हो, किसी को निजी हो छोड़ दीजिएगा। फिर गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। गहरी सांस नाभि से कंठ तक लीजिए और फिर कंठ से नाभि तक धीरे से छोड़िए। धीरे से आंखों की पलकों को बंद कर लीजिए। श्वास प्रश्वास को सहज होने दीजिए। दूर दूर की आवाज़ों को सुनिए। किसी एक आवाज़ पर मन को एकाग्र मत होने दीजिए। एक आवाज़ से दूसरी आवाज़, दूसरी आवाज़ से तीसरी आवाज़। धीरे धीरे अभी जो बाहर में वातावरण है उसके प्रति सजग हो जाइए। धीरे धीरे अपने ध्यान को इस कमरे में लाइए। कमरे की छत, खिड़की, दरवाज़ा सबको देखिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए और जहाँ कहीं भी तनाव खिंचाव का अनुभव हो वहाँ पर मन को ले जाइए और उसको ढीला छोड़िए। अब हम कुछ पार्ट्स का नाम बोलते जाएंगे, उसको ढीला मेंटली आप देखते जाइएगा, ढीला छोड़िएगा। जैसे बोलते हैं सर का ऊपरी हिस्सा ढीला, वहाँ मन को ले जाइए और उसको ढीला करिए। दाएं बाएं खोपड़ी ढीली, दायां बायां कान ढीला, दायां बायां गाल ढीला, नासिका का अगला पिछला हिस्सा ढीला, होठ, चुड्ढी, जीभ, तालू सबको ढीला छोड़िए। पूरा चेहरा ढीला। सर का पिछला हिस्सा ढीला, गर्दन की नस नाड़ी ढीली, दोनों कंधे ढीले, दोनों हाथ ढीला, पूरी पीठ ढीली, कमर का निचला दायां बायां भाग ढीला, दोनों शोल्डर ब्लेड ढीले, पूरा जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दोनों पैर का उसको ढीला छोड़िए। पूरा छाती का भाग ढीला, दायां बायां बीच का भाग। ध्यान को भूमध्य में लगाए रखिए, जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती थीं, या देखिए होइएगा साधु महात्मा लोग बीच में इसी को बोलते हैं आज्ञा चक्र। ये है, यहीं पर सरस्वती का स्थान है। तो फिजिकल लाइफ में कॉमन सेंस को मत छोड़िए और होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ में ये सोचिए कि ये जीवन एक यात्रा है, इसको गुजर जाना है और कैसे अच्छा से गुजरे, इसके लिए ही सारा इतना विधान है, जिसको बोलते हैं विवेक, विजडम। नॉलेज हुआ कि जैसे आप बता रहे हैं, विजडम हुआ कि आपको समझ में आ गई और उसको आपने एक्सपीरियंसली अपने अंदर किया। कैसे आपका शरीर, विचार और भावना स्थिर रहे, वही करा जा रहा है। थोड़ा सा
ये आप शरीर आपको ईश्वर के प्रदत्त बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स दिया गया है। इसके लिए ईश्वर या जो मानते हो एक सुपर पावर, जिसमें भी आपको आस्था हो, जो भी आप वो ईश्वर बोलें, उसको अल्लाह बोलें, जो भी बोलें, गॉड बोलें, राम बोलें, कृष्ण बोलें, वो एक सिंबल है। पहले लोग सिंबल में जाता था, फिर आदमी का पूजा होने लगा, फिर वो सब लंबा चौड़ा में मत जाइए। ध्यान को भूमध्य में लगाए रखिए। आती जाती श्वास को 5-7 बार अपने नासिकारंध्र पर देखिए। सांस लीजिए और छोड़िए, सहज सांस। फिर आती जाती श्वास को अपने कंठ पर देखिए। ध्यान को भूमध्य में लगाए रखिए। जितना सहज से हो सके उतना करिए। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं है। जितना बात समझ में आए उस आराम से करते रहिए। श्वास को कंठ पर 5-7 बार देखिए। फिर आती जाती श्वास को नाभि से कंठ और कंठ से नाभि तक देखिए। इसको आप सुना होइएगा अजपा। बिना जपे आपका सांस चलते रहता है। एक नाम दे दिया अजपा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली समझने की। नाभि से कंठ, कंठ से नाभि। सांस लीजिए कंठ तक, फिर कंठ से नाभि तक। कुछ देर देखते रहिए। शरीर में जो हिलडोल हो रहा है उसके प्रति सजग रहिए। कुछ देर के लिए अपना चिंता परेशानियों को भूल जाइए। पूरा उदर प्रदेश आती जाती श्वास को जब आप सांस लेते हैं देखिए एक हल्का अच्छा लगता है, एनर्जी का अनुभव होता है। जब सांस ऊपर जाती है और जब कंठ से नीचे आती है तो सोचिए सब तनाव, सब आपका जो जितने भी तरफ गए बाहर जा रहे हैं। सांस को नाभि से कंठ, कंठ से नाभि तक देखिए। अगर हो तो उसमें एक ध्वनि भी जोड़ देते हैं। सो, दंत सो होता है सो। जब कंठ से जाए सो और नाभि कंठ से नीचे आए तो हम, सो हम। या लंबी गहरी श्वास को ही देखिए। पूरा चेहरा ढीला, छाती का भाग। जो भी विचार उठ रहे हैं उसको ना कहिए अच्छा, ना कहिए बुरा। आप एक दर्शक की नाते उसको देखता जाइए। उससे आपको कोई मतलब। डोंट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू योर गुड और बैड थॉट्स। जस्ट सिंपली बी अवेयर ऑफ इट। सांस को नाभि से कंठ तक लेते। जो भी अच्छे बुरे विचार उठ रहे हैं उसके प्रति आप दृष्टा भाव अपनाइए। वो जैसे आकाश में बादल है, आते जाते रहता है, वो कुछ देर में बदल जाएगा। एक आंख बदलने बंद करने के बाद जो आकाश है इसके प्रति भी अवेयर होइए। खाली खाली भरा रहता है आदमी। कुछ देर के लिए अपने को खाली करिए। थाउट से, इमोशन से, अपने प्रॉब्लम से, अपने डिजायर से, सब के अवेयर हो जाइए। डिजायर है, हम इसको अवेयर हैं। ये विचार है, हम इसके प्रति अवेयर हैं। ये सांस है, इसके प्रति हम अवेयर हैं और सांस को देखते रहिए। बिल्कुल अंदर में देखने का। जिसने अंदर ढूंढा उसने सब पाया। बाहर ढूंढिएगा तो हो सकता है बहुत बड़ा मैनेजमेंट का आप बहुत बड़ा टाइकून बन जाइए, बिजनेसमैन बहुत बड़ा हो, लेकिन बेचैनी बढ़ते जाएगी। तो ऐसा बैलेंस होना चाहिए। उतने काम करिए जितना कि आपको आनंद भी। कुछ रुपया कमाए, कुछ गाड़ी खरीद के लाए तो उसको एंजॉय भी करिए। कि नहीं तो पड़ोस को देख के। मॉडर्न मैन का 4 फैकल्टी: कॉम्पिटिटिव, कंपैरेटिव, सेल्फ सेंटर्ड एंड ईगोसेंट्रिक। दीज आर द 4 पैरामीटर्स ऑफ मॉडर्न मैन। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव, कंपैरेटिव, सेल्फ सेंटर्ड एंड ईगोसेंट्रिक। इसको आप बाद में डिटेल करिएगा, इतने बताऊंगा। अभी सिर्फ आप देखते रहिए श्वास को नाभि से कंठ, कंठ से नाभि तक।
सांस जब भी आप गहरा लीजिएगा, थोड़ा देर के लिए आंख बंद कीजिएगा, चैन से बैठ जाइएगा, आपके बहुत समस्या का समाधान इसने में हो जाएगा। अपने अंदर सुख, शांति और आनंद के विचार को जगाइए। सुख, शांति और आनंद के विचार का दृष्टा होइए। धीरे धीरे आप बाहर के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। जहाँ बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, जिसके बीच बैठे हैं, मन को बहिर्मुख करिए। श्वास प्रश्वास को सहज बने दीजिए। हाथ पैर को थोड़ा हिलाइए, सर को भी हिलाइए, और चश्मा उश्मा पहने तो उसको खोल लीजिए। थोड़ा सा हाथ को गर्म करके 3-4 बार आँखों पर धीरे से रखिए। सेकना, जिसको पूरा हिट करिए पीछे, ऐसे। धीरे धीरे आँख को खोल। कुछ अच्छा लगा फ्रॉम स्टूडेंट साइड? हैं? ये आप कर सकते हो 1-1.5 मिनट के लिए। प्रत्येक एवरी 1 and 2 hours डू फॉर 1.5 मिनट्स, दूसरी क्लास शुरू होने के पहले, है ना। जब भी आपको हो डीप ब्रीदिंग और थोड़ा खान पान, थोड़ा सा उसमें खान पान को ज़्यादा बताना नहीं ठीक, लेकिन खान पान आप जैसे हम लोगों का ट्रॉपिकल जोन है, जिसमें कैसा खाना होना चाहिए, जल्दी आराम से पच जाए, है ना। और गैजेट्स का व्यवहार सोने से 1-1.5 घंटा पहले नहीं करना है ना। और सोने से पहले बैठ के देख लेना है, काहे कि जो आप स्ट्रेस होता है ना, वही सपना में आता है। डिस्ट्रेसिंग बॉडी भी करती है ना। अगर आपको 4 दिन सोने नहीं दिया जाए तो हॉलोसिनेशन होने लगेगा, 3 महीने भूत प्रेत देखने लगेगा। अगर आपका वायु खराब हो जाए, समझे ना। इसलिए धर्म की तरफ लोग नहीं जाना चाहता है कि इतना तरह का डरा के रखा है टोटका, और वो उसमें मत पड़िएगा। योग करिएगा। और अगर किसी को कुछ हो जाए तो वाइब्रेशन है ना, मंत्रास जो है वो वाइब्रेशन है ना, तो आप उसको भी जप सकते हैं। लेकिन सांस सबसे बढ़िया, किसी चीज़ का कोई जरूरत, थोड़ा देर के लिए शरीर को देखे, थॉट को देखे, इमोशंस को देखे, होगी। फिर आप काम करिए। फिर रोज 5 मिनट के लिए गैजेट्स में निकालिए योग सब। एक बिहार स्कूल ऑफ योगा है, एक है आपका साउथ में रविशंकर जी का है, आर्ट ऑफ लिविंग का है, एक है सदगुरु का है ना। इसको आप अपने लाइफ में स्थान दीजिए। टोटलिटी में जीना है ना जिंदगी, ठीक है। और बाकी अगर प्रिंसिपल साहब से कहिए कि 1 घंटा के लिए आप लोगों को, जब भी जो सप्ताह में 3-4 दिन भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल है, आप खाली मेंटल वर्क करते हैं, और जितना आपका पढ़ाई लिखाई नौकरी है सिर्फ इंटेलेक्ट पर है, उसमें अच्छा और बुरा दोनों होता है। कोई भी व्यक्ति अंदर देखता ही नहीं कि हम इमोशनली कैसा हो रहा है। ये तो फटेगा, कहे ना 4 दिन करिएगा बैठेगा तो फटेगा कि नहीं। इसको मॉडर्न बाहर की ज़िंदगी में कॉमन सेंस वही सरस्वती है, और होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ में कि कहाँ से आएगा, हु एम आई, मैं कौन हूँ। इसका एक सिंपल आंसर होता है कि भाई बॉडी को भी हम देख लेते हैं, इमोशन को भी देख लेते हैं, थॉट को भी देख लेते हैं, और एक अवेयरनेस खाली पल लगता है। वो कभी, ये टाइम बॉडी है 60-70 वर्ष के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को भी आप अवेयर होकर देख सकते हैं। और ये इज प्योर साइंस, इसको आप कभी टोटका में मत पढ़िएगा। ये जो लोग जाने लगता है कुछ लाइफ में उल्टा सीधा आया, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास है। जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो उसको पत्थर मत समझिए, उसको सीढ़ी समझ के, मैन एंड काइट्स गोज हायर बाय अपोजिशन। आप सोचिए मैं सही समय में पैदा हुआ हूँ, सभी हमको सॉल्यूशन, आदमी में वो शक्ति है, देख रहे हो ना कि लोहा उड़ता है ना आकाश में, है ना। कहता है कि अकेले कुछ नहीं होता, अकेला ही चना भाड़ फोड़ता है। एक कहता है एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, हमेशा अकेले व्यक्ति। इसलिए मास के साथ जाने का कोशिश मत करिएगा, व्यक्तिगत। योर लाइफ इज़ योर लाइफ। अच्छा, अगर कुछ समय ज़्यादा ले लिया हो तो प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, मिश्रा जी को।